how has your perspective on love changed? As I said, I'm in a much more calmer space with even like relationship wise. पहले ना मुझे हर चीज फिल्मी बनाना बहुत अच्छा लगता था. आई एम अ वेरी फिल्मी पर्सन. मैं इम्तियाज अली वाला स्टोरी. हाँ, मैं बड़बड़ भी उतनी करता हूँ. तो आई वॉन्ट टू क्रिएट लाइक अ मोमेंट आउट ऑफ मंडेन थिंग्स, है ना. बट आई हैव ऑल्सो हैड पार्टनर्स एंड रिलेशनशिप वाइज आई हैव बीन इन स्पेसेस जहाँ पर पीपल प्रेफर साइलेंस. और जब अचानक साइलेंस आ जाता है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है. So I think one of my biggest lesson has been ke how do you work through silence, right? And the best answer to it is that you enjoy it. Don't just either participate with that person, because it has nothing to do with them being angry on you. Sometimes it is. Yeah. It definitely is sometimes, yeah. But most of the times people, like, not everyone has to be like you, right? No one has to share the same energy. So I think respecting that everyone comes from a different energy spectrum. You can't also be like कि तुम जब लोगों से मिलते हो तो तुम्हारी एनर्जी कैसे आ जाती है. पीपल, मतलब आई हैव मेट सो मैनी पीपल जो अपनी एनर्जीज को रिजर्व करके रखते हैं, है ना, कि बहुत ऐसे सिंपल और ऐसे रहेंगे, बट जैसे ग्रुप आते तो बातचीत करनी पड़ेगी यार. Correct. तो उतनी एनर्जी रिजर्व्ड है. कितना बातचीत करना है. तो आई थिंक हाँ, मतलब माई बिगेस्ट लर्निंग विथ रिलेशनशिप इज दैट यू नीड टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट एवरी वंस वे ऑफ लिविंग. लाइक इफ यू जेन्यूनली लव देम, इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्रिएटिंग दीज फिल्मी मोमेंट्स, क्योंकि वो मैजिक मोमेंट्स तो रहेंगे यार. आप लाइफ में अगर आप किसी के साथ 20-30 साल निकाल रहे हो, 20-30 साल आप मोमेंट्स नहीं बना रहे हो. ज़्यादातर दिन ऐसे हो गए कि आप उठे, है ना, आप दोनों साथ में नाश्ता कर रहे हो चुपचाप, आप निकल गए काम पर, वो अपना कर रहे, ठीक है. बट फिर ये 3-4 दिन ऐसा होता रहेगा, और एक दिन ना या तो आप डिनर पर चले जाओगे, या तो फिर आप एक कोई सीरीज देख रहे हो, या फिर कोई ऐसे एक बहुत ही स्टूपिड सा जोक आपने क्रैक कर दिया और आप दोनों हंस रहे हो. लाइक वो मैजिक मोमेंट बन जाएगा यार. वो आप याद रखोगे, वो आपका सबकॉन्शियस में रहेगा. तो आई थिंक व्हेन वी सी रिलेशनशिप्स, इट शुडंट बी दैट अब मुझे इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा. नहीं आएगा. आप किसी के साथ मतलब आप अपने पेरेंट्स को देख लो, यू लव योर पेरेंट्स, बट क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्स्टेंटली प्यार में हो? No, I don't think that's possible. आप जब बीमार पड़ते हो और माँ को इतना ख्याल आ जाता है कि माँ आपके बाजू में बैठी है, तो सडनली यू फील सो मच लव एंड ऑल्सो द गिल्ट ऑफ नॉट लविंग हर बैक इनफ, राइट, इन दैट मोमेंट. Yeah. बट द नेक्स्ट डे यू आर अगेन फाइन. Yeah. तो आई थिंक वो मोमेंट्स का आपको, like, you have to keep it in mind that most days are mundane. Accept it. Yeah. And don't try to force entertainment in it. Yeah. It's also like, I have this saying na, ki the first phase of any relationship is discovery. So you're discovering things, which is why there's excitement. I think the moments you think you're creating a lot of moments on a daily basis because you've just met. Then it has to go to comfort. Correct. And comfort might seem ordinary and boring. Like me and my wife Pooja, we were laughing the other day because it was a Sunday and our daughter had gone to a friend's house to play. And our son, who's newborn, was with her mother. And she was sitting on the couch and reading a book. And I was sitting and I was reading something else on a chair. And we sat like that for 1 hour. And then looked at each other and somehow smiled because you're like, that felt like a moment. Yeah. But it was comfortable. It is not like an exciting, we're not skydiving together, which will never happen because I'll never skydive. But I wouldn't bungee jump either. So cannot do these things. And it's called anyway. That's a whole different discussion. मुझे नहीं मरना है. हाँ, क्यों जाना है उसके पास? But it's that you got to find comfort, and when you find comfort, you will not say मजा नहीं आ रहा है because that's the life you want to live. Because if you're bungee jumping every day together, even that will become boring. Correct. कितना करोगे? हाँ. एक दिन तो आदत हो ही जाएगी. Correct. And I feel also with love and relationships, one more thing is that we keep putting this pressure on ourselves कि love needs to be the sole reason for us to find happiness. Yeah. कि मतलब we have, like, I need to make you happy, you need to make me happy. Happiness is the core of it. I feel that spoils it, no? Do you agree? हम क्योंकि फिल्मों पर बड़े हुए, तो हमने हमेशा देखा है कि लड़का लड़की मिलते हैं, बहुत एक्साइटिंग है, जो हम हमारी लाइफ पहले लड़ते हैं, उसके बाद
पर 3 घंटे में तो पिक्चर खत्म हो जाती है. Correct. नो वन टॉक्स अबाउट व्हाट्स हैपनिंग लेटर. What's happening after happily ever after? एग्जैक्टली. फिर बहुत सारी पिक्चरें बनी वो दिखाने के लिए जिसमें सिर्फ झगड़े हो रहे हो. मैंने कहा पर इन बिटवीन द हनीमून पीरियड एंड दिस होल फाइट सीन जो होता रहता है, रोज ऐसे झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से उब चुके, उसके बीच में ना बहुत ऐसा लाइक देयर इज लेजीनेस, देयर इज लिटरल लेजीनेस. मैंने रिलेशनशिप्स देखे, इफ आई हैव टू डिफाइन इट, अगर आप हम हमेशा कहते हैं ना कि नेटफ्लिक्स एंड चिल, तो शुरुआत में नेटफ्लिक्स एंड चिल है कि आपने शो लगाया पर आप शो नहीं देखोगे. Correct. करेक्ट. Correct. कुछ और हो रहा है. हाँ. फिर धीरे धीरे आप एक स्पेस पर पहुंचते हो जहाँ पे नेटफ्लिक्स एंड चिल इज एक्चुअली बैठे हो और नेटफ्लिक्स देख रहे हो साथ में, है ना. आपकी विश लिस्ट बनती है कि ये वाली सीरीज तो हम साथ में ही देखेंगे. हाँ. है ना. और ये वाला अपने आप देख लेना चलेगा. करेक्ट. हाँ. और फिर धीरे धीरे यू आर लाइक अरे मैंने वो देख ली, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं. तो यू रीच दैट पॉइंट ऑफ कंफर्ट जहाँ पर आपको एक दूसरे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं हम ये साथ में ही देखेंगे या वैसे ही करना है. यू फाइंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टाइम एंड यू आर लाइक हाँ तुम जैसे रहना चाहते हो अपने आप रहो, मैं जैसे रहना चाहती हूँ मुझे रहने दो. बट वेन वी आर टुगेदर एंड लाइक देर इज दिस इक्वेशन, तब है ना बस वो प्यार महसूस होना चाहिए. आई थिंक टू फील लव इज नॉट to express it with words and everything. It's just to be beside each other in times of happiness, in times of need. और वो बहुत बार सिर्फ एक हग होता है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. आपने बस ऐसे हग कर लिया ना, इंसान समझ जाता है कि आपको कोई दिक्कत है या वो आपको हग कर रहे हैं क्योंकि they sense that you are not fine right now. So I think that's also love. But do you think this also leads people to take love for granted? Because you're like, no, it's not like we have to do everything together. It's not like we have to. There's a little distance that comes with it, and you need to find comfort in that distance because when you're together, you also enjoy it as much. Correct. But do you think that can lead to you taking it for granted? One thing that I have always seen, and honestly I will say this, कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते में बच्चे हमेशा माँ बाप का प्यार ग्रांटेड लेते हैं. Correct. पर एक कपल के बीच में वो नहीं होना चाहिए. बिकॉज माँ बाप ने घर बनाया है, बच्चा उसमें रह रहा है ना. तो माँ बाप छत संभाल रहे, उन दोनों को तो पिलर बन के सही से संभालना पड़ेगा, राइट. एंड वी अलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट्स अ वेरी अनसेड रूल इन रिलेशनशिप्स कि कुछ काम मैं करता हूँ, कुछ काम सामने वाला करता है, राइट. लेट्स टेक के यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप. one person creates the itinerary. Correct. The other person creates के खाना कहाँ पे खाएंगे. तो one person is a very foodie person. वो बनाएगा कि यहाँ घूमने जाएंगे. तो he takes charge also of the maybe the fact के मस्ती कहाँ पे करेंगे ना वो मैं देख लूँगा. I will be the improviser of the plan. Yeah. But one person has the whole list ready. And you have to respect those parts and you can't. और वो जताना भी नहीं है कि हर बार मैं ही क्यों बनाती हूँ. Maybe because you are so good at it. And even if I try, I might not. And if you don't, if you're not the person to do it at that point of time, you will also be like, "Arey, but this was my thing." Correct. You didn't have to take it away from me. Like, मुझे बहुत बार है ना संडेज को खाना बनाना अच्छा लगता है, right? So when I'm dating or with someone, right, I would still like to enjoy that part. कि मैं तुम्हें खिला दूंगा. It's not कि मुझे क्योंकि पूरा हफ्ता तुम बना रही थी तो मैं उसको उसके लिए कर रहा हूँ कि अब मैं संडे. आई एंजॉय इट. डू यू एंजॉय कुकिंग मंडे टू फ्राइडे? देन डू इट. वरना वील फाइंड समथिंग एंड वील अरेंज दैट ऑल्सो. कोई दिक्कत नहीं. जस्ट डू दैट कम्स नेचुरली टू यू. डोंट फोर्स योरसेल्फ इन थिंग्स. What comes naturally to you and forcing is, I feel, the thing, right, is that ek to we have this pressure from what you've seen in movies. Secondly, there is pressure of what social media is showing you, because all you're seeing, and I think there's two sides to social media, right? One is you're seeing like, okay, we're living our best life, wala imagery, and I am being totally vulnerable and sharing my worst moments with the world. Beach wala category never gets highlighted as much because I don't think people actually want to or are interested in the beach wala category. Correct. Now, what happens because of these two things is that your assumption is if I'm not this, then I'm that. And that's one entire piece that's kind of breaking just how we look at things. No? Because I don't see a balanced, vulnerable person. I'm either like totally vulnerable or I'm living the best life ever. I mean, हम अब तो चलो इंस्टाग्राम रील्स 1.5 मिनट की हो गई है. आप 1.5 मिनट को जिंदगी का डेफिनेशन नहीं बना सकते. Correct.
1.5 मिनट हम हर कोई है ना वो 1.5 मिनट देखते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा यार, ये देखो कितना क्यूट था, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ. बिकॉज जब आपका क्यूट मोमेंट बन रहा था ना, आपने उसे बस जाने दिया, यू लेट इट गो. द होल फैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम और जिस सोशल मीडिया इज दैट इट शोज यू रिलेटेबल थिंग्स. तो ये कहीं ना कहीं सबके साथ हो चुका है. बट आप जो जीवन जी रहे हो है ना, किसी के साथ या इंडिविजुअली ऑल्सो, उसमें बहुत ऐसे मोमेंट्स है जो मैजिकली कभी नहीं देखने मिलेंगे, जो सिर्फ आप एंजॉय कर सकते हो, वो इंडिविजुअल मोमेंट्स. सो आई थिंक दोज विल नेवर गेट हाईलाइटेड एंड समहाउ वी टेंड टू इग्नोर इट और अनदेखा कर देते, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को ना कंपेयर करने में लग गए उस एक्साइटमेंट के साथ कि लोग कैसे जी रहे. आई थिंक वो दिमाग से निकल जाना, बिकॉज इट्स क्रिएटेड अ रश इन अस. आई हैव टू लिव अप टू दैट. And also I have to document what I'm going Yes. through and not experiencing it. करेक्ट. You know, you are like, no, this moment has to be captured with 2 cameras. Like, I don't have a video of when I proposed to my wife, but I remember it so vividly, maybe because I didn't have a camera shooting it at that point of time. And sometimes you're happy you have that. Like, I have a video of the first time I held my daughter, or first time my wife held her daughter as well. But if you start documenting everything for यार लाइटिंग अच्छा नहीं फिर से शॉट ले लेते वाला सीन, सो देन यू आर क्रिएटिंग इट. यू आर क्रिएटिंग रीटेक्स. हाँ, यू आर क्रिएटिंग रीटेक्स. अब वो नेचुरल नहीं रहा. आई थिंक जैसे आप कह रहे थे, होल्डिंग योर डॉटर वाज द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देन द फैक्ट कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है. करेक्ट. लाइक इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि आपने आपके बच्चे को हाथ में लिया है और बाकी सब ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है. आपने किसी को असाइन नहीं किया है कि अरे वो जब मैं बच्चे को हाथ में लूंगा तो रिकॉर्ड कर लेना. तो दैट्स ऑल्सो डिफरेंस इंटेंट वाला कि यू नो आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस, और ये मैंने असाइन कर दिया किसी को काम. I think when it naturally happens, there are a lot of proposal videos where people haven't assigned the camera to someone. Others have just found it cute and recorded it. बहुत बहुत beautiful लगता है मुझे वो सब. Because natural लगता है ना. Because there was this thing I heard the other day saying there's a minute difference between when a person naturally smiles and when they are smiling when someone says smile, even though how much ever you might practice. Like the person who's practiced it the most, be small, like 5%, 10% difference, and that any human can actually gauge and catch कि ये natural नहीं है. And I feel that's so important to think about, because if you're not doing it naturally and if it's not just being captured, then you're acting. तो जब कैमरा आप पर नहीं है तो आप बात कर रहे हो, पर जब कैमरा आप पर आ जाता है तो आप डायलॉग्स मार रहे हो. So true. Like you want के मैं 4 चीज बोलूंगा, उसमें से एक डायलॉग तो लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए अरे क्या बोल दिया यार. ये फर्स्ट पार्ट रहेगा मेरे रील का. करेक्ट. इवन व्हेन यू आर रिएक्टिंग, राइट, लाइक आप कितना लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स के मैं किस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ, कैसे कैमरा पे दिखने वाला है. आई शुडंट कम अक्रॉस एज एन अगली पर्सन. अगली ब्यूटिफुल वाला ये कॉन्सेप्ट पूरा ये पूरा दिमाग के अंदर चलता रहता है. So you're not naturally reacting on it. Like photo of you coming out of bed, but needs to be aesthetically coming out of bed. कोई ऐसे लगता नहीं है coming out of bed. I don't think that's. मैंने जब पहली बार ये देखा था ना, woke up like this. हाँ. मैंने कहा कैसे उठ रहे लोग ऐसे. मुझे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि मैं like I saw this first on Facebook. Woke up like this, ऐसे अंगड़ाई लेकर आदमी, ऐसे बाल बराबर सेट. मैं बिखरे हुए बालों के साथ उठ रहा हूँ, मैं इधर इधर गिर रहे भाई मेरे बाल, यहाँ पे थूक थूक लगी. मैंने कहा कैसे हो रहा है ये लोगों के साथ यार. I'm guilty. I've also taken photographs which was me doing many things which were not actually what I was doing, frame karke. But I think you should realize that that's something you're doing. Yeah. The problem is that one is that you are showing something to the world. The second is you are believing it yourself. Imagine, and there is a line there. Imagine being insecure with your own digital self. Correct. Like क्या जिंदगी जीता है ये, वो 1.5 मिनट की वीडियो में और क्या जिंदगी जी रहा हूँ मैं. आई थिंक वो भी यार एक बहुत बड़ा इशू है यार. Did that make you rethink things? If it did, make sure you check out the full episode.